Good afternoon, Arman. Good afternoon, sir. और कैसी चल रही है प्रेपरेशन? अच्छी चल रही है सर। कैसी चल रही है? चल रही है सर। So we will wait for a couple of minutes for others to join in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So yes, I am requesting everyone. So please switch on your camera so that we can start the class on time. Interviewer, maybe. Interviewer, are you listening? Yes, sir. क्या कैमरे में प्रॉब्लम है आज? सर 2 मिनट मैं करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। So Interviewer is basically the most consistent student. That's why he get the privilege to get the camera a bit later on. Yeah, समनप्रीत आपने अटेंड नहीं की few classes, 1-2 क्लास? सर कल की क्लास थी लास्ट वाली, परसों की क्लास आपने ली नहीं थी और कल पता नहीं नेटवर्क का कोई इश्यू था सर। चलो, तो कनेक्ट नहीं हो रही थी। मैंने YouTube पर वीडियो देखी थी वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। So आज का जो हमारा एजेंडा है that I am going to share the screen that what we have to start today. So I think this window is clear to everyone. ठीक है, तो यहाँ से यस एवरीवन दिखाई दे रही है ये विंडो? यस सर। यस, खुशी विल टेल कि आज कौन सा प्रैक्टिकल करना है इसमें से, जो विंडो दिखाई दे रही है इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल करना है आज? प्रैक्टिकल नंबर 6 करना है आज हमने। यस, वेरी गुड। सो वेरी फॉर्म वॉइस बाय खुशी। तो क्वेश्चन भी बेटा रीड कर दो थोड़ा सा, सो दैट नो वी स्टार्ट मूविंग ऑन। Importing and exporting data between pandas and CSV file. Yes, so this is the basic question. बहुत easy है। 2 लाइन का कोड है इंपोर्ट करने के लिए और 2 लाइन का कोड है एक्सपोर्ट करने के लिए। So this is a very easy question. So this sort of question may appear in your practical also. तो ये है, तो आज ये प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों से करवाना है कोड। So I am just opening up the Jupyter notebook. So this is the Jupyter notebook. Maybe some problem is there in the Amritpal is here today.
Yes. So the Jupyter notebook has opened. So a couple of persons are joining in, so we will just first admit them into the class and then we will start the class. Okay, so many of the students have joined in. So before, yes, Amritpal and Sheetal Vaid, Arman Thakur, Indraveer. So I am requesting everyone, that's CPH 1819. So we will not start the class before I am able to justify that everyone is there with the class. ठीक है, ये ना कि हमारी क्लास बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हो तो पता नहीं कौन ज्वाइन कर रहा है हमारी क्लास. So I will check the face and then I will start the class. Sir, I am encountering some problem. Indraveer is given the permission. Indraveer is having the permission. That is only due to the consistency. Clear? The criteria is consistency. That's why the Indraveer is allowed to work without camera. Yes, rest Arman, Amritpal, Sheetal Vaid, and CPH 1819. So this is the final request from my side that you can switch on your camera. Yes, so Mr. Hundal is here in the class and rest are trying in. Arman is there and Sheetal Vaid is there and finally Amritpal. Amritpal, आवाज आ रही है मेरी? So okay, so now we move to the today's task. मैं फिर से विंडो शेयर कर रहा हूं. That is, what is the question is there. So I will ask Sheetal Vaid to read the question. जो हमारा आज का क्वेश्चन है. So Sheetal Vaid, this is the screen. आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है. So please you can read the question. It is importing and exporting data between pandas and CSV. हाँ जी. तो बेसिकली जो आज का टास्क है कि कैसे हमने डाटा को मूव कराना है. दैट इज फर्स्ट वी विल लुक एट एक्सपोर्ट की कैसे हमने, लेट्स से वी स्टार्ट विद द इंपोर्ट बिकॉज पहले भी हमने इंपोर्ट ही पहले किया था कि कैसे हमने CSV फाइल के डाटा को लेके आना है अपने डाटा फ्रेम में. क्लियर? एंड हाउ टू ब्रिंग दैट डाटा इनटू द Jupyter नोटबुक. तो इंपोर्टिंग का पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन. सो वी स्टार्ट विद द कोड. वन बाय वन मैं बोलूंगा बीच में से, सो देन यू हैव टू स्टार्ट अप, पार्टिसिपेट करना आप लोग भी. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंपोर्ट pandas as PD. So this is the very first statement. अब बेसिकली हमने इंपोर्ट कराने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? यस एनीवन? डाटा को CSV फाइल को रीड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? एनीवन? Sir, read.csv. Read.csv. That is not read.csv. Read_csv. Underscore, yes, sir. Yes. देर हो गई ना थोड़ी पढ़े. Read_csv. Yes, sir. बोलने टाइम. हाँ कोई बात नहीं. तो मेरे D ड्राइव में पड़ी हुई है एक फाइल विद द नेम नवदीप. सो navdeep.csv. तो फाइल इस स्टेप से फाइल इंपोर्ट हो जाएगी और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट df. ये देखो 2 लाइन का कोड है, इसमें कुछ भी नहीं है. दैट इज नाउ वी विल रन दिस वन. सो बस हमें याद रखना है कि कौन सा फंक्शन है फाइल को रीड करने के लिए और कौन सा है एक्सपोर्ट के लिए. So it will take a bit time initially and now read_csv is not defined. Why it is not defined? है भी है ये read_ ही है या कुछ और था? सर यही है. आपने ना वो जो read_csv है ना, हाँ जी. उसके आगे R लिख के देखो
अच्छा चलो रन बेसिकली हमने वो लाइब्रेरी का तो जो पैकेज है पांडास लाइब्रेरी का तो वो हमने यूज ही नहीं किया। क्लियर? सो दिस इज द फाइल वी हैव, ठीक है, navdeep.csv। इसमें रोल नंबर पड़े हुए हैं, नेम पड़ा हुआ है, मार्क्स हैं एंड सिटी है। क्लियर? and this is the data is there in that particular file. So this step is basically the importing के लिए है ये। So I will just name importing the data from a CSV file. Clear? So ये है हमारे पास मेन फंक्शन तो यही है, that is the read underscore CSV। तो read underscore specifically ये मेथड किस लिए है? How to fetch the data from a CSV file। और हमने इसको क्या कर दिया, DF को असाइन कर दिया। वो बाय डिफॉल्ट डाटा को डाटा फ्रेम मोड में ही लेके आता है। क्लियर? तो इसमें ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन भी हो रही है डाटा फ्रेम। दो स्टेप हो रहे हैं, एक तो CSV फाइल का डाटा रीड हो रहा है, दूसरा उसको कन्वर्ट हो रहा है इनटू द डाटा फ्रेम, and we have just printed the data frame. Next step is that is exporting the data to a CSV file. So we have a huge audience today. आज काफी स्टूडेंट्स हैं। So yes, शीतल कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो? कैसे हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे डाटा? Whatever you know. यस गुरलीन बेटा कैमरा ऑन कर लो प्लीज। ऐसे तो धीरे धीरे करके सारे बंद करके चले जाएंगे क्लास में से। यस अरमान, यस थोड़ा सा बता सकते हो कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे डाटा को? व्हाटएवर यू नो। यस अमृतपाल, अमृतपाल चाय पीने तो नहीं चले गए कहीं? यार यहां पे भी देखो आप कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे। नो सर, अमृतपाल इज सेइंग नो सर। यस अमनप्रीत, सर टू जो भी आपको पता CSV। है। हाँ हाँ, टू सीएसवी तो मेथड है हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए। बट क्वेश्चन अराइज है, हमने एक्सपोर्ट करना क्या है? क्या एक्सपोर्ट करना है? सर कोई भी डाटा फ्रेम बताओ। क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो बताओ मैं अपने क्वेश्चन को आगे कैसे इनिशिएट करूं इसके अंदर। सो आई सर बताओ। पहले डिक्शनरी से डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। वेरी गुड। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। गुड। तो डिक्शनरी के अंदर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं नेम। तो नेम के अंदर ले लेते हैं लेट्स से नवदीप रमेश and let's say we have a third value Rahul. So these are the three persons we have. Next parameter हम ले लेते हैं, let's say दूसरा कॉलम हम ले लेते हैं expenditure done by them. So let us say this is 10,000, 12,000 and let's say this is 15,000 by Rahul. Clear? So this is the data we have. Yes, next Amanpreet, next step. सर 2CSV फंक्शन लगाएंगे। 2CSV नहीं है ये, हमारे पास डिक्शनरी है। So first we will सर convert the डाटा dictionary. फ्रेम PD Yes. डॉट यस सर। So let's say we take it as df1. So pd dot data frame और डाटा फ्रेम का नाम हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है। सो दिस इज, एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारे पास डाटा फ्रेम। So 3 persons are there and with their expenditure. Now next step is how to put into a file. Yes, क्या लगेगा इसके लिए स्टेप पता है कुछ? to_csv फंक्शन तो है। सो बेसिकली हमने डाटा फ्रेम 1 को कन्वर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है to_csv। ये तो मेथड है हमारे पास। यस, नेक्स्ट बेसिकली किसी भी फाइल का हम नाम दे सकते हैं इसके अंदर। तो लेट्स से डी ड्राइव में फाइल है, इसका नाम हम एक्सपेंडिचर ही रख लेते हैं, expenditure.csv। so I think so the file will be exported। इसको रन करके देख लेते हैं। so the प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है। so ये एक्सपोर्ट हो गया। इसको चेक करने के लिए कैसे इसको चेक करेंगे, इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? यस अरमान, सर वापस से रीड कर लेंगे। हाँ वापस से रीड CSV फंक्शन लगा के उसको रीड कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, वेरी गुड, दिस इज आल्सो गुड आइडिया। तो df2 रख देते हैं इसका नाम, इज इक्वल टू pd.read_csv। और जो अभी हमने फाइल बनाई है दैट इज द नेम ऑफ द फाइल इज expenditure.csv। ठीक है जी। सो दिस इज टू प्रिंट करने के लिए। ठीक है जी। सो इसको रन कर लेते हैं। expenditure CSV is not existing over there। स्पेलिंग में तो नहीं है कोई गड़बड़? एक्सपेंडिचर इज सर डी के बाद कॉलम्स। हाँ हाँ हाँ, और हमने इसको प्रिंट भी तो करवाया नहीं, अभी प्रिंट भी करवा लेते हैं साथ में, प्रिंट df2 so that we get the output also। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट इज इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरा क्या है कि बेसिकली वी हैव वन मोर मेथड कि हम अपनी डी ड्राइव को खोल के देख सकते हैं कि डी ड्राइव में हमारे पास वो फाइल बनी है नहीं है। बट यू हैव गिवन ए वन मोर मेथड कि अगर वो फाइल बनी होगी तभी हम उसको फेच कर पा रहे हैं, अगर वो फाइल बनी नहीं होगी सो वी विल नॉट बी एबल टू फेच। सो दिस इज ए गुड आइडिया गिवन बाय अमनप्रीत। क्लियर? so this is now we are done with this practical and now we can save it as। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बेटा साथ साथ में मेंटेन करके रखना। सो दिस प्रोग्राम, जैसे ये मेरा प्रोग्राम बन गया है तो मैं इसको सेव कैसे करूंगा, आप बता सकते हो इसको सेव कैसे करना है प्रोग्राम? जुपिटर नोटबुक में मैं इसको किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करना चाहता हूं, कैसे सेव करूंगा इसको? यस एनीवन? मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है यही बता दो मेरे को। व्हाट इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम इज? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आज। एनीवन? सर अभी तक आपने नाम रखा नहीं, इट्स नॉट सेव्ड। हाँ हाँ हाँ, सेव्ड है ये प्रोग्राम सेव्ड है। यू नो पाइथन में, ये जुपिटर में सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव होते रहते हैं। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है ऑटो सेव। तो जब भी आप प्रोग्राम टाइप करते हो ये साथ साथ में ऑटो सेव करता रहता है। तो अभी मेरे प्रोग्राम का नाम है अनटाइटल्ड 74। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे, क्लिक करो। सो दैट लेट्स से 812 और प्रैक्टिकल नंबर है ये हमारा, प्रैक्टिकल नंबर इज 6। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया। सो नेक्स्ट टाइम आई कैन फेच दिस प्रोग्राम विद दिस पर्टिकुलर। तो ऑटो सेव होता है इसमें, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है हमारा टाइम टू टाइम सेव होता रहता है। क्लियर? सो दिस इज वी आर डन विद दी टुडेस प्रैक्टिकल पार्ट। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है बेटा साथ साथ में
अभी नहीं, बट एटलीस्ट डेली एक प्रोग्राम तो करके देखा करो, जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। तो जब तक आप लोगों की टाइपिंग आप लोग जेल नहीं होगे पाइथन कोड के साथ, तो प्रैक्टिकल में आप लोग जब भी आप लोगों को डिफिकल्टी आएगी कभी भी, जैसे आपका फाइनल प्रैक्टिकल है, तो जितना आप जेल्ड होगे कोड के साथ, फेमिलियर होगे विद द इंटरफेस, उतना ही आप लोग जल्दी प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर लोगे इन द फाइनल एग्जाम आल्सो। सो नाउ मूविंग टू द टुडेज थ्योरी टॉपिक। तो हम डिस्कस कर रहे थे सोसाइटल इम्पैक्ट्स के अंदर, कल हमने डिस्कस किया था, बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। यस, कौन बताएगा अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइसेंस और उसका कोई बेनिफिट है हमें, हमें कोई फायदा हो उसका? बहुत टिपिकल नहीं है ये टॉपिक, दिस इज वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ ए टॉपिक इज। यस खुशी, आप लोग भी पीपीटी खोल लिया करो साथ साथ में। सर सॉफ्टवेयर लाइसेंस हमें वो लीगली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिससे एंड यूजर को आगे प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, और आप उसके कॉपीज नहीं बना सकते बिना राइट के। ठीक है। किस तरह का बेनिफिट मिलता है एक एंड यूजर को, क्या बेनिफिट मिलता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस का? सर वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है बिना उसके राइट कॉपीराइट्स वायलेट किए बिना। वो तो ठीक है, बट इसके अलावा यस एनीवन एल्स? सुखजीवन? सर कोई दूसरा इंसान तो उसके सॉफ्टवेयर को इलीगली कॉपी नहीं कर सकता और उसको अपना नाम नहीं दे सकता सर। हाँ, उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है, बट एक्चुअली एंड हमें तो फोकस करना है एंड यूजर के ऊपर ना, एंड यूजर को क्या बेनिफिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कंपनी के लिए तो ये ठीक है कि कंपनी के सॉफ्टवेयर को कोई दैट इज कोई उसको अगर यूज करता है, पायरेटेड फॉर्म में यूज करता है, सो कंपनी कैन स्यू दैट पर्सन, उसको आप लीगली आप उसको फाइन कर सकते हो उस पर्सन को। ठीक है, बट एंड यूजर को एक मेजर जो बेनिफिट है कि जो भी सॉफ्टवेयर में अपडेशंस होगी, द यूजर्स विल आल्सो गेट दोज अपडेशंस। ठीक है, कि जैसे आप देखो, आपने अगर आपके पास विंडो 10 ओरिजिनल है, तो जब भी अगर विंडो ओरिजिनल में कुछ भी अपडेशंस होती है, तो उसका पैक जो है वो आपको ऑटोमेटिकली वो पैक अवेलेबल हो जाता है। जैसे लेट्स से कि विंडो 10 में उन्होंने फायरवॉल में कुछ इंप्रूवमेंट की है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स उसमें कुछ अपडेशंस की है, तो वो सारी अपडेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्लियर? सो दैट इज ए बिग हेल्प टू दी एंड यूजर, कि आप जो भी कंपनी उस सॉफ्टवेयर में अपडेशन करती है, द यूजर आल्सो गेट्स द बेनिफिट, क्योंकि वो तो पे कर रहा है उसको। क्लियर? एंड ही विल गेट दोज सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो दिस वाज द मेन थीम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर लाइसेंस। एक इसमें पॉइंट आया था, वी सी दैट पॉइंट इज, क्या पॉइंट था वो? the difference between the license and the copyright, क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? यस एनीवन? बेस्ट मेथड है, आप लोग ये पीपीटी खुद डाउनलोड करके रख ला करो साथ साथ में, एंड यू कैन ओपन दैट पीपीटी साइड बाय साइड आल्सो। यस, व्हाटएवर यू नो। बेसिकली क्या है, जो तो कॉपीराइट है, कॉपीराइट होता है बेसिकली कॉपीराइट जो है वो जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको सेफगार्ड करने के लिए है कॉपीराइट, जैसे आईपीआर है। और लाइसेंस क्या है? लाइसेंस हमेशा होता है कि मैं किसको लाइसेंस दे रहा हूं। जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उसका लाइसेंस अरमान ठाकुर को दे रहा हूं मैं उसको, तो मींस मैं उससे कुछ ना कुछ जो भी मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो मिलेगा, प्लस अरमान ठाकुर के साथ मैं टाई अप कर रहा हूं कि लाइक यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। जो भी मैं अपडेशन करूंगा, दोज अपडेशंस विल अरमान विल गेट दोज अपडेशंस। तो लाइसेंस में क्या होता है? लाइसेंस इज ए सॉर्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन द एंड यूजर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जो लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो एंड यूजर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारा एंटीवायरस आपने 1 साल के लिए लिया है, तो आप उस एंटीवायरस को 1 साल के बाद वो एंटीवायरस क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर वो 2 साल के लिए है तो 2 साल चलेगा, अगर वो मल्टी यूजर के लिए है तो मल्टी यूजर उसको यूज कर सकते हैं, अगर वो सिंगल यूजर के लिए है तो वो सिंगल यूजर ही उसको यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें कहां पे होती हैं? ये सारी चीजें लाइसेंस का पार्ट होती है। तो लाइसेंस इज ए बेसिकली वेरी मच एसोसिएटेड विद कॉपीराइट। कॉपीराइट को डिफेंड करने के लिए ही है हमारे पास जो लाइसेंस है। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंटररिलेटेड विद ईच अदर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? We have FOSS, that is free and open source software, and this terminology is now getting popular day by day. ठीक है? तो FOSS होता क्या है हमारे पास? FOSS is a kind of software that allows users to not only freely run the program for any purpose but also provide the users to its source code. तो एक तो है हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम उसको, हमें सोर्स कोड भी उसका अवेलेबल हो जाता है, और सोर्स कोड के अंदर हम अपडेशंस करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करके हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा सॉफ्टवेयर पता हो जो फोर्स कैटेगरी में आता है? एनी सॉफ्टवेयर यू नो विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? यस, कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है अभी तक जो फ्री हो? और माय क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। और भाई सारे जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो, MySQL यूज कर रहे हो, तो दोनों के लिए आपने कितने पैसे अभी तक दिए हैं? इन दोनों कंपनीज को कितने पैसे पे किए हैं आप लोगों ने? So these are the example of the FOSS software. Clear? So these are the software which are freely available and we are using and we are taking benefits of that. बाकी अगर हम Windows 10 को freely यूज कर रहे हैं तो वो pirated यूज कर रहे हैं, we are basically now violating the जो भी IPR rules के साथ है, so we are violating that sort of thing. Clear? So ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर है which falls under the category of FOSS. ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज मोर ओवर इट अलाउज अस टू मॉडिफाई। सो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट फॉर फोर्स। नंबर 1 जो क्राइटेरिया है, सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड। तो सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट द सॉफ्टवेयर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट है एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई दी सोर्स कोड। कोई भी उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप उस सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मींस और किसी को भी वो सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। तो लाइसेंस में ये ना हो कि ये बंदा इसको यूज कर पाए और ये बंदा इसको यूज ना कर पाए। एवरीवन शुड बी अलाउड टू मेक यूज ऑफ दैट वेरी सॉफ्टवेयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी फ्री। अगर वो फ्री है तो तभी वो फोर्स की कैटेगरी में है। अगर वो फ्री नहीं है, आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो उसके लिए, सो दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स। वैसे भी अदर देन दिस सिलेबस, ये फोर्स का कंपटीशन किसके साथ है? कोई बता सकता है फोर्स सॉफ्टवेयर का किसके साथ कंपटीशन है? Sir, all the Microsoft apps. Yes. And तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मैंने आपको ये एक वर्ड लिख के बताया था। proprietary. हाँ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके साथ इसका कंपटीशन है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, दैट इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है
ये देख लो आजकल अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन अमंग जो आप लोग देख रहे हो विंडोज बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज का किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपटीशन है बताओ, एनीवन? लिनक्स। लिनक्स है। लिनक्स इज नॉट दैट वे पॉपुलर, वो इतना पॉपुलर नहीं है लिनक्स। लिनक्स की बरादरी में और भी सॉफ्टवेयर है। सर iOS। So Ubuntu. iOS तो फ्री नहीं है बेटा। iOS का तो चक्कर ही है कि वो मैक मशीन के ऊपर ही चलेगा, वो किसी हमारे लैपटॉप के ऊपर तो वो चलेगा ही नहीं कभी भी। So Ubuntu. Ubuntu, very good. So Ubuntu is the example. No, Ubuntu is the example of that force. मैं ना आपको एक मोटी मोटी एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने नया लैपटॉप बाई करना है ना, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर आप कभी भी मार्केट में कंपैरिजन करना, 2 लैपटॉप हैं, दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन है, एक के ऊपर उबंटू इंस्टॉल्ड है, एक के ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो कभी भी आप दोनों की कॉस्ट कंपेयर करके देखना। विंडोज वाला लैपटॉप हमेशा कॉस्टली होगा। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, बिकॉज विंडोज इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर में वो लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जबकि उबंटू दूसरी टाइप पे फ्री है। तो अगर आप उबंटू वाला लैपटॉप बाई करोगे सो दैट विल बी 2 से 3 हजार रुपए वो वहां से सस्ता होगा वो, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमारे पास एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए बीइंग दी आईपी स्टूडेंट्स। ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो मार्केट्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके साथ भी हमें इन टच में रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सिलेबस पढ़ लिया है सो दैट्स ऑल। ये मोटे मोटे बेसिक्स हैं दैट यू शुड बी अवेयर। तो इन चीजों को हम लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं। कि मैं तो अब कभी भी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बाई करता हूं, बिकॉज अगर कहीं से 2-3 हजार रुपए बच रहे हैं आपके, सो यू शुड मूव विद दैट ऑप्शन। और देखो उबंटू सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा आपको हेजिटेशन लगेगी शुरू में, बट यू नो दैट गिव यू वेरी वेरी ह्यूज, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा अगर आप उस सॉफ्टवेयर। एक क्या होता है, जब आप उसको 2-4 महीने यूज करोगे तो धीरे धीरे आप लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थोड़े से आप क्या हो जाओगे, जेल हो। यस, सो एट द एंड आपका कोई क्वेश्चन है? सो द क्लास इज ओपन। एनीवन वांट्स टू हैव एनी पॉइंट टू बी डिस्कस्ड? कोई आपका पॉइंट है? यस, any query you have, or you are looking for the lunch? लंच भी बड़ा important part है, that is so thank you very much for everyone for being into the class, and tomorrow we will look for the next practical as well as the theory topic. ठीक है, thank you beta, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.